ناظرین السلام علیکم، میں محمد اظہار ایشین ٹی وی نیوز میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں 23 دسمبر کی سپیڈ نیوز۔ BRS MLC کے کویتا نے ضلع کاماریڈی میں مقروض کسانوں کی کھیتوں کی زمینوں کو نیلام کرنے کی ریاستی حکومت کی کوشش کی مذمت کرتے ہوئے اسے اعتماد کے ساتھ خیانت قرار دیا۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ اسے فوری طور پر روک کے اس کے بجائے کسانوں کو ریلیف فراہم کرے۔ اس اقدام کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے کویتا نے ریونت ریڈی کی حکومت کی جانب سے کاماریڈی ضلع کے میلارم، ڈورکی، نصر آباد، مرزا پور اور ناچوپلی دیہات کے کسانوں کی زمینوں کو نیلام کرنے کی کوششوں پر تنقید کی، جنہوں نے مقامی پرائمری ایگریکلچر کوآپریٹو سوسائٹی سے فصل کے قرضے حاصل کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جسے قرض معافی کرنے اور کسانوں کی حمایت کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ آمرانہ انداز اپنا رہی ہے۔ حیدرآباد پولیس کمشنر سی وی آنند نے پیر کے روز سندھیا تھیٹر میں بھگدڑ کی کوریج پر قومی میڈیا کے بارے میں اپنے ریمارکس کے لیے معذرت خواہی کی۔ پولیس کمشنر نے کہا کہ جب وہ جاری تحقیقات پر قومی میڈیا کی جانب سے اشتعال انگیز سوالات کا سامنا کر رہے تھے تو اپنے آپ پر قابو کھو بیٹھے۔ کمشنر سی وی آنند نے ریمارک کیا تھا کہ قومی میڈیا کو خرید لیا گیا ہے۔ ان کے ریمارکس پر قومی میڈیا کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ تیلگو فلم اداکار الو ارجن کی قیامگاہ پر حملے کے الزام میں 6 افراد کی گرفتاری عمل میں آئی۔ بعد ازاں ان کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ اتوار کے روز جوبلی ہلز میں واقع الو ارجن کے گھر پر 10 نوجوانوں نے حملہ کیا۔ حملے کے دوران انہوں نے گیٹ کو نقصان پہنچایا، ٹماٹر پھینکے گئے اور گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی۔ سیکیورٹی عملے کو مارا پیٹا اور مکان کے احاطے میں موجود پھولوں کے گملے توڑ دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ الو ارجن خبردار کے نعرے لگائے گئے تھے۔ الو ارجن کے اسٹاف نے پولیس کو واقعے کی اطلاع دی، جس پر پولیس فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے حملے میں ملوث 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ الو ارجن کے مینیجر کانتا راؤ کی شکایت پر پولیس نے مختلف دفعات کے تحت کیس درج کر لیا تھا۔ حیدرآباد میں US قونصلیٹ نے ویزا اپائنٹمنٹس کو ریشیڈول کیا ہے کیونکہ یہ منگل کو بند رہے گا۔ درخواست دہندگان کو ہدایت کی گئی کہ دوبارہ طے شدہ اپائنٹمنٹس کے بارے میں تفصیلات کے لیے اپنے ای میل چیک کریں۔ قونصل خانے کے ایک ہینڈل پر شیئر کی گئی معلومات کے مطابق اسٹوڈنٹ ویزا F1 اپائنٹمنٹ 26 اور 31 دسمبر کے لیے ریشیڈول کیے گئے۔ یہ فیصلہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا کہ طلباء اپنے سیمسٹر کی کلاسز شروع کرنے کے لیے وقت پر سفر کر سکے۔ دراصل دیگر تمام ویزا انٹرویو جو اصل میں 24 دسمبر کو طے کیے گئے تھے، 15 جنوری 2025 کو ریشیڈول کیے گئے۔ تلنگانہ کا ڈائریکٹر جنرل آف پولیس DGP ڈاکٹر جتیندر نے کہا کہ فلمی شخصیات اور دیگر لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ شہریوں کی حفاظت، ان کی سلامتی سب سے زیادہ اہم ہے اور انہیں اپنے آپ کو اس کے مطابق رکھنا اور برتاؤ کرنا چاہیے۔ وہ رواما کے روائل میں پشپا 2 فلم کی اسکریننگ کے موقع پر شہر کے ایک تھیٹر میں فلم بھگدڑ کے واقعے میں خاتون کی ہلاکت اور تیلگو فلم سرکردہ اداکار الو ارجن کے چند تبصروں پر پوچھے گئے سوال پر رد عمل کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی کسی کے خلاف کوئی ذاتی مقاصمت نہیں ہے، لیکن اس دوران ہم تمام کو ریاست کے شہریوں کے تئیں ذمہ دار بننا چاہیے۔ ڈاکٹر جتیندر نے کہا کہ وہ فلموں میں ہیرو ہوں گے، لیکن انہیں زمینی طور پر سماج کے مسائل کو سمجھنا ہوگا۔ سٹی پولیس کمشنر سی وی آنند نے انکشاف کیا کہ پیر سے ٹرانسجینڈرز حیدرآباد ٹریفک ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اتوار کو بندرہ ہلز کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں تربیت یافتہ 39 خواجہ سراؤں نے ٹریفک ڈیوٹی سے متعلق ٹریننگ حاصل کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے CP سی وی آنند نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ خواجہ سراؤں کو خاندان اور معاشرے میں بہت زیادہ امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ایک موقع فراہم کرنے نے سماج سے جوڑنے کی نیت سے پہلی بار انہیں ریاست تلنگانہ کے محکمہ ٹریفک میں ہوم گارڈ کیڈر کے تحت ٹریفک اسسٹنٹ کے طور پر فرائض انجام دینے کا موقع دیا گیا۔ تلنگانہ کے کریم نگر ضلع میں پیش آئے ایک عجیب و غریب واقعے میں رشوت کی رقم لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے عہدیدار نے جذباتی انداز میں رونا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ ضلع کریم نگر کے حضور آباد ٹاؤن میں پیش آیا۔ پکڑے جانے کے بعد روتے ہوئے نظر آنے والے عہدیدار کا ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وائرل ہو گیا۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ حضور آباد میں ریونیو ڈویژنل آفیسر کے کیمپ کلرک سندیپ کو سادہ کپڑوں میں ملبوس عہدیداروں نے رشوت کی رقم وصول کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ موجودہ معاملے میں آرڈیو کے کیمپ کلرک سندیپ پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے کسی کام کے لیے ایک کسان سے 75,000 روپے رشوت مانگی اور قبول کی۔ گرفتار عہدیدار کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ گوپال پورم پولیس نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر نوزائیدہ بچے کو فروخت کرنے کے الزام میں 10 افراد کو ایک گروہ کو پکڑ لیا۔ ملزمان جن کا تعلق اتر پردیش اور حیدرآباد سے ہے نے ایک گینگ بنایا تھا اور نومولود بچوں کو فروخت کرنے میں مصروف تھے۔ وہ سوشل میڈیا پر ممکنہ خریداروں سے رابطہ کرتے اور معاہدہ کرتے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب وہ 15 دن کے بچے کو 4 لاکھ روپے میں بیچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملزمان سے پوچھ گچھ جاری ہے اور بچے کو ان کے چنگل سے چھڑا لیا گیا۔ گوپال پورم پولیس نے معاملے کو خفیہ رکھتے ہوئے جانچ کر رہی ہے۔
खानापुर वन टाउन पुलिस ने घरेलू हरासानी के सबब खुदकशी के मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। वन टाउन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सर्कल इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने इस मामले की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। पुलिस के मुताबिक 8 दिसंबर को खानापुर से ताल्लुक रखने वाली खातून तस्लीमा फिरदौस ने मुबैना तौर पर घरेलू हरासानी के नतीजे में एसिड पीकर खुदकशी कर ली थी। खातून पर उसके शौहर अब्दुल मतीन, सास और ससुर और दीगर खवातीन रिश्तेदारों की जानिब से हरासनी का इल्जाम था। इस वाक़े के बाद 9 दिसंबर को पुलिस ने मुतवफ़िया के शौहर अब्दुल मतीन को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया था। बाद पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए खातून के ससुर एम ए हकीम, सास इम्तियाज परवीन, नन्नो, समरीन आयशा, इस्किया और अंजुम को कामारेड्डी से गिरफ्तार कर लिया। निर्मला टाउन के डबल बेडरूम मकानात के इहाते में और बंगलपेट के अतराफ में जिले एसपी डॉक्टर जी जानकी शर्मिला IPS की हिदायत पर डीएसपी गंगा रेड्डी की क़ियादत में निर्मल रूरल इंस्पेक्टर की टीम और एंटी नारकोटिक ड्रग्स डॉग टीम ने नशेआवर अशिया की स्मगलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई। महकमे पुलिस जिले को मंशियात से पाक बनाने के मकसद से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि गांजा और दीगर मंशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इस तलाशी मुहिम में SI साई कुमार, एंटी नारकोटिक डॉग टीम महिपाल, साइना, सैंदर, किरण, रहमान, प्रानीत और दीगर पुलिस अहदेदार ने हिस्सा लिया। तेलंगाना के संगारेड्डी के जहीराबाद मंडल के बोजिनपल्ली अखिलियती गर्ल्स गुरुकुल में कल एक तालिबा हादसाती तौर पर सीढ़ियों से फिसलकर जाँ बहक हो गई, जो 9वीं जमात की तालिबा बताई गई। जहीराबाद के जमालिया कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली 14 साला सादिया, जो 9वीं जमात की तालिबा थी, रात के खाने के बाद अपने कमरे की तरफ जाते हुए सीढ़ियों से फिसल गई, जिसके नतीजे में सादिया के सर पर शदीद चोट आई। शदीद जख्मी होने के बाद सादिया को फौरी तौर पर जहीराबाद के एरिया अस्पताल में इब्तदाई इलाज फराहम किया गया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए इन्हें हैदराबाद की गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सीढ़ियों से गिरने की वजह से सादिया के सर पर शदीद चोट आई और हालत बिगड़ने के बाद दौरान इलाज वो गांधी अस्पताल में जाँ बहक हो गई। पंजाब हाईकोर्ट के फैसले को नाफिज करने से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन के ज़वाबित में अचानक की गई तब्दीली, जिसके जरिए इलेक्शन से मुतालिक दस्तावेज़ात और मशमूलात तक अवामी रसाई को महदूद कर दिया गया है, पर अपोजिशन ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे मनसूबाबंद साजिश करार दिया, जिसका मकसद इलेक्शन कमीशन की इदारे जाती सालमियत, साख और उसकी खुद मुख्तारी को ख़त्म कर देना है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने विरासत के 43 साल पुराने तनाज़े को ख़त्म करते हुए तारीखी फैसला सुनाया और कहा कि इस्लाम में विरासत की तकसीम का बहुत वाज़ेह कानून और उसूल मौजूद है। अदालत ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से बेखबरी पर दिल्ली अदालतों की सरजनिश भी की। कश्मीर लाइफ और ग्रेटर कश्मीर की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस विनोद चटर्जी कोल ने मुख्ती नामी खातून की वालिद की विरासत में हक देने का फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम खातून को इसके वालिद के तरके में हिस्से से महरूम नहीं किया जा सकता। उन्होंने निशानदेही की कि इस्लामी क़वानीन में विरासत में बेटियों को बेटों पर फौक़ियत दी गई है। कोर्ट ने सूरह निसा की आयत नंबर 11 का हवाला देते हुए इस्लाम में विरासत से मुतालिक उसूलों को वाज़ेह किया और बताया कि मज़कूरा आयत मरहूम के तरके में बच्चों, शरीक हयात और ख़ानदान के दीगर अफराद का हिस्सा तय करती है। गौरक्षा ग्रुप सेवा बस्ता दायाबाजों के अरकान ने जारी हफ्ते के अवाइल में हरियाणा के नूह में एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर पर वहशियाना हमला किया, जो अपनी गाड़ी में बैलों को मुंतकिल कर रहा था। ये वाक़या 18 दिसंबर के रोज़ पेश आया था, लेकिन हफ्ते के रोज़ इसका वीडियो वायरल होने पर मंजर आम पर आया। मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रहे वीडियो में इंतहा पसंद ग्रुप को ट्रक ड्राइवर अरमान खान से पूछताछ के दौरान इसे घुटनों पर बैठने पर मजबूर करते हुए देखा जा सकता है। हमलावर अरमान खान को मार रहे थे और बाल पकड़कर घसीट रहे थे। इसे गाँव हमारी माता है और बैल हमारा बाप है दोहराने पर मजबूर किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दाल मंडी इलाके में काशी विश्वनाथ जाने वाली सड़क की तोसी के लिए तकरीबन 10,000 दुकानात को मुनहदिम किया गया, जिनमें ज़्यादातर दुकानें मुसलमानों की थी। इस फैसले से मकामी अवाम में परेशानी फैल गई, जो कई नस्लों से इलाके में अपने कारोबार चला रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम ने इन दुकानात का सर्वे किया। मकामी अवाम ने बताया कि निज़ामी कार्रवाई से हज़ारों अफराद मुतासिर होंगे, क्योंकि इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। यह निज़ामी कार्रवाई काशी विश्वनाथ राहदारी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका मकसद मंदिर और गंगा घाट के दरमियान यात्रियों के लिए एक बड़ा रास्ता तैयार करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पीर को यहाँ CBCI सेंटर में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI के ज़ेर-ए-एहतमाम क्रिसमस की तक़रीबात में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर PMO ने यह बात कही। PMO की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि मोदी मसीही बरादरी के अहम लीडरों के साथ बातचीत की गई, जिनमें कार्डिनल्स, बिशप और चर्च के अहम लीडर शामिल हैं। ये पहला मौका है कि जब कोई वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान में कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर में इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत की हो। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI 1944 में कायम की गई थी और यह इदारा है जो हिंदुस्तान भर के तमाम कैथोलिक के साथ करीब से काम करता है।
महाराष्ट्र में अजीत पवार धड़े के लीडर छगन भुजबल हाल ही में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले पर पहुंचे। महाराष्ट्र की काबीना में जगह न मिलने पर छगन भुजबल नाराज थे। अब सीएम फडणवीस के साथ इनकी मुलाकात से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनसीपी लीडर बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इस हवाले से बहस शुरू की गई। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस इन्हें काबीना में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन अजीत पवार ने ऐसा इन्हें होने नहीं दिया। इसके बाद भुजबल ने कहा था जहां अमन नहीं है वहां रहना नहीं है। उन्होंने कहा था कि वो एनसीपी के कारकुनों और बही खाओं से बात करने के बाद मजीद कुछ बताएंगे। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के पीर के रोज दौरे परभनी के ऐलान के एक दिन बाद बीजेपी और शिवसेना के रहनुमाओं ने कांग्रेस के इक़दाम को ड्रामा और मुनाफिकत करार दिया। मिस्टर गांधी परभनी में फूटने वाली हालिया तशद्दुद में हलाक होने वाले 2 अफराद के लवाहिकीन से मिलने और ताज़ियत पेश करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर 23 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 से ज़्यादा तकर्रुरी लेटर नए तैनात किए जाने वालों में तकसीम किए। एक वर्चुअल इवेंट के जरिए रोजगार मेले में भर्ती करने वालों से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि इनकी हुकूमत ने पिछले 1 या 1.5 साल में नौजवानों को तकरीबन 10 लाख मुस्तकिल सरकारी नौकरियां फराहम की। उन्होंने कहा कि इंकिशाफ किया कि तकर्रुरात एक रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड बम हमले में मुलविस 3 बदनाम जमाना मुजरिमों के साथ इनकाउंटर में तीनों मुजरिमों को मार गिराया। मुलजिमान के कब्जे से 2 AK-47 और 2 पिस्तौल बरामद हुए। गुरदासपुर पुलिस चौकी पर ग्रेनेड बम हमले के वाक़े के बाद से पंजाब और यूपी पुलिस तीनों मुजरिमों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने पीलीभीत इनकाउंटर में मारे गए मुजरिमों की शिनाख्त गुरविंदर सिंह वल्द गुरुदेव सिंह उम्र 25 साल साकिन महल कलानूर थाना कलानूर जिले गुरदासपुर, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि वल्द रंजीत सिंह उर्फ चीता उम्र 23 साल के तौर पर की है। बांग्लादेश भारत पर मुसलसल नए इल्ज़ामात की बारिश कर रहा है। अब बांग्लादेश के तहक़ीक़ाती कमीशन ने मुल्क से बांग्लादेशी शहरियों की गुमशुदगी के बारे में हिंदुस्तान के किरदार पर शुबा ज़ाहिर किया है। ये कमीशन बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अबूरी हुकूमत ने तश्कील दिया था। अब इंक्वायरी कमीशन ने दावा किया है कि बांग्लादेश की मौजूद वज़ीर आज़म शेख हसीना के दौर में मुल्क में जबरी गुमशुदगी के वाक़यात में हिंदुस्तान मुलविस था। अपनी रिपोर्ट की हिमायत में 2 मखसूस केसेस का हवाला देते हुए कमीशन ने रैपिड एक्शन बटालियन के किरदार के बारे में भी बात की है। इसलिए इंक्वायरी कमीशन ने भी RAB को ख़त्म करने की सिफारिश की है। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तानी अमेरिकी कारोबारी वेंचर कैपिटलिस्ट और मुसन्निफ श्री रामकृष्णन की मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक व्हाइट हाउस पॉलिसी का सीनियर मुशीर नामजद किया है। ट्रंप ने मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुतादिद तकरीरों का ऐलान करते हुए कहा, श्री रामकृष्णन व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में मसनूई ज़हानत के लिए सीनियर पॉलिसी मुशीर के तौर पर काम करेंगे। शाम के माजूल सदर बशारुल असद की अहलिया अस्माउल असद ने तलाक के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्माउल असद रूस में रहना नहीं चाहती और लंदन वापस जाना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने बशारुल असद से अलहदगी का फैसला किया है। अस्माउल असद ने रूसी अदालत में तलाक की दरख्वास्त दायर की है। वाज़ेह है कि 11 दिन की शिद्दत पसंदाना झड़पों के बाद इस्लामी ग्रुप हयातुत तहरीर शाम की क़यादत में एक बागी इत्तेहाद ने बशारुल असद को इख्तियार से हटा दिया था, जिसके बाद वो अपने ख़ानदान के साथ रूस फरार हो गए थे। रूस ने इंसानी बुनियादों पर बशारुल असद उनके ख़ानदान को पनाह दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बशारुल असद भी लंदन जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम रूसी हुकाम ने इनकी जायदाद और रकम जब्त कर ली है। बशारुल असद शाम से मास्को 270 किलोग्राम सोना और $2 अरब लेकर गए थे। रूस ने इनके भाई माहिरुल असद को पनाह देने से इनकार कर दिया था। फ़लस्तीन की सरकारी खबररसां एजेंसी वाफा ने रिपोर्ट किया कि गाज़ा की पट्टी में इजरायली फ़िज़ाई हमलों में कम से कम 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इतवार के रोज़ मुसाबी नसीर स्कूल पर इजरायली बमबारी के नतीजे में 3 बच्चों और 2 ख़वातीन समेत कम से कम 9 अफराद हलाक और कुछ ज़ख्मी हो गए, जिसने गाज़ा शहर के अलजराज महल्ले में बेघर होने वाले लोगों के घर बनाए। सनवा न्यूज़ एजेंसी वाफा के हवाले से इत्तला दी। हयातुत तहरीर शाम के कमांडर अहमद शारी अल तुर्की के दौरे पर आए हुए वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने बातचीत की, जिसके दौरान दोनों फ़रीक़ाइन ने 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़बूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। इतवार को अपनी मुलाकात के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते फ़िदान ने शाम के लिए रोशन मुस्तक़बिल के पुरउम्मीद होने का इजहार किया और शाम के बुनियादी ढांचे की तामीर नौ, इसके इदारों की तंजीम नौ और बेघर शामियों की वापसी में तुर्की की हिमायत का वादा किया। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।